I call this meeting to order. Let's rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। So, on behalf of Rotary Club of Pune Shivaji Nagar, I welcome our today's speaker and chief guest, Mr. Lalit Kumar. He has joined us in the Zoom meeting today from Delhi, and we really appreciate the time he has taken. Today's proceedings will be with Lalit in Hindi, and I will restrict myself to speak as little Marathi as possible so that there is complete understanding of what we are transacting today. I also welcome District Director Praveen Mule. He is joining us today on behalf of our Rotary District 3131. He is in charge of the polio portfolio. We will understand the significance of why we have invited him today once we know and more about our today's chief guest and speaker, Lalit Kumar. So now let's go and start the Rotary business for next 10 minutes. First, customary congratulations to all our members who have done something of prominence. Our PDG Deepak Shikarpur, he has been selected as the think tank executive committee member of MCCI, Maratha Chamber of Commerce and Industries, for a 2-year term, that is 2020 to 2022. Congratulations, PDG Deepak. We are proud of you and look forward to your contribution to the road that MCCI takes during next 2 years. Next is congratulations to Annette Karthik Gokhale. He has cleared the advanced JEE and he has stood 291 in All India merit list. So we wish him all the best in his future academic career. We know that Karthik and entire Gokhale family is very scholarly and he has once again proved it. So congratulations, Karthik, on behalf of all the members of Rotary Club of Pune Shivaji Nagar. Now I request Secretary Ravi Kiran to unmute himself and announce birthdays and secretarial announcements. Over to you, Ravi Kiran. Thank you, Sharad. Today's birthday, that is 5th October 20, is Dattaji Inanda's birthday. Many, many happy returns of the day, Dattaji, from RCPS.
Next, Ravi Kiran for the secretarial announcements. Yeah, there are two announcements. There is a meeting by RC Pune Airport on 6th October 20 about IPL fever, which is right now being held at Dubai, Sharjah, and interview by of Javagal Srikanth. Srinath. Sharad, can you kindly, I can't see the screen properly. Okay, can you see? Yeah, correct. The interview of Javagal Srinath. So whoever wants to attend, we are a partner club for this program, and they can enroll themselves after informing President Sharad. And secondly, there is a Manogat competition by RCP NIBM, and applications are invited up to 10th October 20. Actually, the details have been shared on RCPS official site, and you can go through them. If any details still are required, you can definitely contact President Sharad or myself. Over to you, Sharad. Thanks. Thank you, Ravi Kiran. Let us review briefly what we did during last week, that is from 28th September to 4th October. Installation of Rotaract Club of MMCOE completed on 30th September. The event was organized by our Youth Avenue, Director Youth PP Gauri, PP Rujuta Vrunda, and President-elect Dr. Shobha Rao attended the installation function. So these are some snaps of our President and Secretary of the Rotaract Club. The response has been very good, and they are really looking forward to a lot of contribution from our side in their coming year. Another activity which was done during last week was we had some technical issues in the lecture of our own Anil during last week. So we had scheduled that lecture on 3rd of October, and Anil took us on a safari, African safari. It was so enthralling and it was so wonderful that the views that we have got on his video are really worth appreciating. Thank you, Anil. Now I request Director Non-Medical Services, Nitin, to brief us about non-medical projects during last week. Over to you, Nitin. Yeah, thank you, Sharad. डॉक्टर स्मिता जोगानी सार्थक करता या महिन्याचा फूड ग्रेनचा सप्लायला मदत केली. थँक्यू व्हेरी मच. त्याचप्रमाणे 2 दिवसापूर्वी सीमा महाजनचा फोन आलेला होता की बालशिक्षण मध्ये काही स्वेटर्स त्यांच्याकडे मुलांचे अवेलेबल आहेत चांगल्या कंडिशन मध्ये. तर ते स्वेटर्स सुद्धा आपण आज पिकअप करून ते देखील सार्थकच्या मुलांकरता ते तिथे पाठवलेले आहेत. 38 स्वेटर्स आपल्याला त्या प्रकारे मिळाले. सो थँक्यू सो मच सीमा आणि डॉक्टर स्मिता ताई जोग ऑल्सो. हे आपले ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहेत. ॲट द सेम टाइम एकलव्य रेणुताई गावस्करांची संस्था आहे, त्याला देखील या महिन्याचं फूड ग्रेन पाठवण्यात आलेले आहे. त्याच्यामध्ये अनिरुद्ध इनामदार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी याच्याकरता फायनान्शियल सपोर्ट दिला. सो थँक्यू ऑल. ओव्हर टू यू शरद. Thank you, Nitin. I think on behalf of Vrunda, I will brief today just to save on time. Last week, we were synergy partners in Project Disha. This was an initiative of Rotary Club of Pune, Kalyani Nagar, and 18 clubs in District 3131 were synergy partners. There was a lecture series of 7 lectures of interest, which are of general interest to everybody, and the response was quite encouraging. Our members also utilized this opportunity and attended the lectures of interest to them. This concluded yesterday, and it was a part of the literacy week that was celebrated by the district. So thank you, Vrunda, for coordinating the efforts, for coordination efforts, and becoming the synergy partner for this project. Another initiative which will run over next 8 to 9 weeks is a project in which we are synergy partner of Rotary Club of Pune University.
Rotary Club of Pune University has organized a 8-part series, lecture series by very eminent scientists. And the first lecture by Dr. Vijay Bhatkar on electronics revolution and its journey concluded on 4th of October. The participation is seen to be believed. This is a brainchild of RCP Pune University, and we are synergy partners for it. This will continue for 8 weeks. I urge all the members also to spare some time on Sunday mornings and attend these lectures. Now, I request Parag to talk to us about the polio initiative of Rotary. Parag, please unmute yourself and please go ahead. Am I audible? Oh, ऐकू येते. We can hear you. धन्यवाद President Sharad Dole, Secretary Ravi Kiran. My copmate, I don't know, Gauri is there, Gauri Shikarpur. When I was president of Pune Pride, she was president of Shivaji Nagar. We worked together. I started my district's journey with Vinay Sathe in foundation. I'm sure Vinay must be there. Is there. As well. PDG Mukund Abhyankar, PDG Deepak Shikarpur. One line about Deepak Shikarpur is today I am standing as polio director because of him. He basically introduced me in foundation in 2016-17, and we worked together in grants team for 3 years when he was DRFC. Also, guest lecturer Lalit Kumarji, thank you so much to share dais with you. So as a district polio eradication committee chair, thank you so much Club Shivaji Nagar for inviting me. As rightly pointed out by Deepak Shikarpur, that this is the first polio eradication or polio celebration meeting that I am attending in the district. There are few invitations, but Shivaji Nagar stands probably first to start this drive. We have a district program coming up on 31st of October. There are so many programs in district going on. So the slot that I got from DG Rashmi is on 31st of October. Again, the idea given by your PDG, Deepak Shikarpur. So we are conducting one mega program of 90 minutes in which there will be a lot of things in it, right from entertainment to, what Rotary has done to eradicate polio, how much money, time, efforts has been spent by individual Rotarian, Rotary clubs and Rotary in general will be discussed during that particular seminar, which will be on 31st of October, Saturday, 7:30 to 9 p.m., of course on Zoom. And we expect more than 1,000 people and all presidents and club. So I'm just announcing this, but of course, DG Rashmi will talk to every president and Rotarian about it. District target of raising polio fund this year is given $200,000, and today we stand to about $10,000+ of collection. So we are far behind in raising money on polio fund. Second thing is I wish to discuss about little bit. I have been given 4 minutes. But I will reduce to 2 minutes possibly. So I will discuss little bit. Your club is highly educated with 2 PDGs and 1 DRFC. So I will not spend my more time on foundation. But there are many questions which comes to me from district about what is the difference of polio fund and annual program fund, and will we get credit if we give to polio fund. So first of all, there is a difference definitely. However, both of the funds in itself are unique. In both the funds, you get points. In both the fund, you get recognition. And when you donate to Foundation for Polio Fund and when you donate Foundation for Annual Program Fund, it is recognized. So let me talk about polio right now because this is what I'm supposed to talk about. When you give $1 to Foundation for Polio, $2 are given by Bill and Melinda Gates Foundation. So
in total, $3 goes to foundation. So when you donate $1,000, $3,000 actually Rotary gets for eradication of polio. You get the same recognition what you get in APF. So if you are donating $1,000, it adds into your total foundation giving. So tomorrow, if after giving $10,000 if you want to become a major donor, even you can donate to polio fund $1,000. I mean $10,000, you still get the major donor tag. So whether it is APF or polio, but most of the Rotarians they give annual program fund, and then they don't look at polio fund as important. And that is the reason precisely why we have very poor polio funding in past. So what I understand in last 5 years, in 16-17, we donated $68,874, which I believe is the highest polio giving in last 5 years. And we are supposed to collect $200,000. So I urge all the major donors and foundation givers to also think about giving it to polio fund, because a lot of people think polio is completely gone, it is eradicated, it is less important. It is not. Polio still exists in our neighboring countries, which is Pakistan and Afghanistan. And Nigeria is under observation for the past 3 years. Nigeria polio is gone in 2019 with Rotary's effort. So it is. I will not go into technical things of polio, because I am sure all of you are well aware about polio, and it is preventable and vaccines are available, and a lot of you must have participated in polio vaccination in past. So my humble request to President and club members to donate generously to polio, and help us eradicate polio from our neighboring countries, which is Pakistan and Afghanistan. Thank you so much. If there are any questions related to donation, I would love to take it, if at all. Otherwise, I pass the mic to President. Thank you. शरद, मला ह्या विषयावर 30 सेकंद बोलायचे. आपण परागमुळेचं कौतुक करायला पाहिजे, कारण तो होम क्वारंटाईन मध्ये आहे. त्याचा आता 6वा दिवस आहे, आणि तीही त्याची कमिटमेंट बघा रोटरीची. तो आता होम क्वारंटाईन मधनं बोलतोय. सो वी मस्ट अपलॉड हिज कमिटमेंट. स्वतः तोंडावर हात वगैरे ठेवू नकोस. पण कोविड पेशंट, कोविड वॉरियर, नाव ही विल बिकम पोलिओ वॉरियर ऑल्सो. अँड आय रिअली सॅल्यूट यू. आणि तुझ्या माहितीसाठी सांगतो की मी गव्हर्नर असताना मी $3 लाख कलेक्ट केले होते. अँड वी हॅड वन आश्रम सोसायटी मेंबर. So if you go after polio warriors like that, what we are having today, fundraising is not a problem. And we have a polio warrior in our club. And I request you to tell DG Rashmi ki Vilas Jog, jala ti changli olokte, he has completed 100 polio corrective surgeries. So on 24th October, please recognize him from district also, and RCPS will join. These are my points, and I will remind you again. Thank you very much. Sorry. Thank you. I will definitely look into it, PDG. Thank you. Thank Parag for taking out time today. This is the occasion to revisit our commitment to eradication of polio. So at the cost of spending another 2 minutes, I request everybody to just have a look at this video. Can you see the screen? Can you see the screen? We've forgotten how afraid we were. In 1952, the threat was real. Parents were advised to keep children away from crowds. Pools closed and movie theaters went dark. Hysteria grew. People were quarantined. It was the worst polio outbreak the United States had ever seen. But it's not ancient history. It's still circulating. As recently as 1988, the World Health Organization estimates that the world saw more than 350,000 new polio cases that year alone. That's nearly 1,000 new cases per day. But through the largest global health initiative in history, we've gone from 350,000 cases annually to just 74 in all of 2015. That's
That's a staggering 99.9% reduction. But we can't quit now. If we don't stop circulation of the virus, we risk reinfection and outbreaks. That's why getting to zero matters. We're not saying it'll be easy. Vaccination in these countries is complex and expensive. In our ultra-connected world, the disease is never more than a plane ride away. Within 10 years, failure to eradicate polio from these last remaining strongholds could result in as many as 200,000 new cases every year. We've immunized 2.5 billion children in the world's largest, most sophisticated global health initiative. Our commitment to eradication matters now more than ever. We are on the cusp of making history. Now I invite Nirupama to introduce our today's guest and speaker, Mr. Lalit Kumar. Over to you, Nirupama. Okay. Thank you, Sharad. Good evening, friends. It is my pleasure to introduce our chief guest today, Mr. Lalit Kumar from Delhi. Mr. Lalit Kumar contracted polio at the age of 4. He was bedridden for more than 2 years and went through polio corrective surgeries for 6 times. In spite of this, he is the first member to be graduated from his family. He has done MSc in Bioinformatics from Edinburgh, UK, MSc in IT from Mysore, and also completed Software Engineering program from GNIIT with gold medal. He got scholarships from Scotland and Canadian government. He has worked in United Nations organization, which was his dream, and also with Medical Research Council. He is a successful blogger with thousands of followers. He is a winner of National Award for being role model for differently able people. His book, Vitamin Zindagi, is considered to be the best motivational book written in Hindi. It was heart-render to hear his struggles written in his book on Facebook Live hosted by Manjiri. Through his YouTube channel, Dashamlav, he educates Indian people who are differently able about their rights. WeCapable.com is another initiative he has taken to spread information for people who are differently able and motivate them and to lead successful and meaningful life. Our member Manjiri will talk to him and unfold many other aspects of his life and his inspirational journey for us. Thank you. Over to you, Sharad. Thank you, Nirupama. Now I hand over the podium to Manjiri and Lalit. I will just take a minute to ensure that nobody is able to unmute during the discussions other than Manjiri and our guest today, speaker, that is Mr. Lalit Kumar. So just give me a second, I will do it. ललित जी आप अनम्यूट कीजिए आपने प्लीज. आप मुझे सुन पा रहे हैं? या Manjiri, please unmute yourself. Yes. Yeah. Thank you, Sharad. Thank you. Please go ahead. Yeah. So before I commence the interview, it's almost 8 o'clock because all relevant matters. So I request all of you, let our meeting Yes.
Yes. go on for a little longer, maybe 8:40 or so. Yeah, So, sure, because sure. he has so much to offer, Yeah. and we'll make the most of it. तो ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लब में, और at the outset I would like to thank you for accepting our invitation, and you are here on this platform. So without wasting any more time, my first question to you is, आपका जीवन असामान्य से असाधारण तक की एक लंबी यात्रा है, जो एक लगातार लंबा संघर्ष रहा है। यह यात्रा कोई आसान बात नहीं थी, और कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आइदर मेक अ मैन बिटर और बेटर, एंड ऑब्वियसली यू हैव इमर्ज्ड एज अ मच बेटर पर्सन। और जैसा कि आप अपने किताब में लिखते हैं कि जैसे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, वैसे मन को भी विटामिन की जरूरत होती है। तो इस पूरे संघर्षमय यात्रा से निखरने के लिए आपने कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया, और उसका सोर्स, उसका स्रोत क्या था, ये हम पहले जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। रोटरी क्लब के सभी सदस्यगण जो मुझे सुन पा रहे हैं, आशा है मेरी आवाज आप लोगों तक स्पष्ट आ रही होगी। थोड़ा वॉल्यूम अगर आप बढ़ा सकते हैं तो अच्छी तरह से सुनाई देगा। जस्ट मुझे फिर कुछ सेकंड दीजिए। हाँ, मैं वायरलेस की जगह वायर्ड कम्युनिकेशन। ओके। क्योंकि आपका एक भी लफ्ज हम मिस नहीं करना चाहते, इसलिए। Is it any better? Yeah. मंत्री जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। Lalit, I think you have become, you have muted yourself, looks like. Manjari, you are also muted. Please unmute. I'll have to unmute you. Manjari, please speak. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Now it's fine. Yeah. Yeah. Okay. Okay. चलिए, हाँ। I'm sorry. I think it's better now. Very Yeah, good. yeah, much Very much good. better, much Okay. Perfect. Okay. So आपका जो क्वेश्चन है, बहुत सारे, कोई एक ऐसा विटामिन नहीं होता है, बहुत सारी आपके मन की जो भावनाएं होती है, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन हमको इस्तेमाल करना होता है। आप अभी हमारी इस चर्चा शुरू होने से पहले जो पोलियो कैंपेन के बारे में बात की गई, उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था। पोलियो एक बहुत ही भयानक बीमारी है। 1952 के आसपास के बारे में जो एक वीडियो में चर्चा की गई, उस समय अमेरिका में कहा जाता था कि अमेरिकियों को दुनिया में दो ही चीजों से डर लगता है, एक एटम बम से कि जापानी उनके ऊपर एटम बम ना फेंक दे, और दूसरा पोलियो से। तो अमेरिकी लोग पोलियो से इतना ज्यादा उस समय भयभीत थे, लेकिन अमेरिका में वैक्सीन खोज ली गई, और जिस तरीके से 1950 के दशक में अमेरिका में लोग भयभीत थे, वैसा ही कुछ भारत में हुआ 1970 और 80 के दशक में। और मुझे भी 1980 में पोलियो हो गया था, जब मैं 4 वर्ष का था, और मेरा जन्म दिल्ली के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक ऐसी जगह पर जो कि विकलांग जन के लिए बिल्कुल भी कहेंगे कि फ्रेंडली नहीं थी। ना लोग फ्रेंडली थे,
ना जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो डिजाइन है हमारे समाज का, बिल्डिंग्स का, वो कुछ भी ऐसा नहीं था। जब मुझे पोलियो हो गया तो एक अच्छी बात ये रही कि मेरे फैमिली के लोगों ने, मेरे माता-पिता ने, दादा-दादी ने, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को जारी रखा। ये यूँ समझिए कि ये जो एक डिसीज़न था उनका, इन्होंने मुझे ज़िंदगी दी। मैं आज 2020 में जब दूसरे लोगों के लिए काम करता हूँ, जिनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाई, उनका जीवन किस दिशा में गया है और कितनी बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं। पोलियो के विशेष संदर्भ में, क्योंकि रोटरी क्लब पोलियो इरेडिकेशन के लिए इतना प्रयासरत है, तो मैं उसमें पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के बारे में भी कुछ कहूँगा बाद के थोड़े समय के बाद, क्योंकि पोलियो का वैक्सीनेशन केवल उसका एक पक्ष है। वैक्सीनेशन करके हम पोलियो के वायरस के सर्कुलेशन को रोक देते हैं, नए केसेस को आने से रोक देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है? उन लोगों को पोलियो, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को तुरंत मार देती, लेकिन पोलियो व्यक्ति को मारता भी नहीं है और उसको एक जिंदगी भर चलने वाले संघर्ष के साथ छोड़ देता है। आपने आप में से शायद कुछ लोगों ने आयरन लंग्स के बारे में सुना होगा। कुछ लोगों को जिनको पोलियो का प्रभाव लंग्स के ऊपर होता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं। उनकी जो लंग्स की मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, वो सांस नहीं ले पाते। तो उन्हें जीवन भर एक बड़ी-सी मशीन के भीतर रहना पड़ता है जो उन्हें सांस दिलाती है। उन्हें आयरन लंग्स कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये जो वायरस है, ये लंग्स पर प्रभावित नहीं करता, ये लिम्फ्स पर प्रभाव करता है, हाथ-पैरों पर, और उनको एक इनकम्प्लीट बॉडी के साथ छोड़ देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। प्राथमिक शिक्षा मेरी बहुत बेसिक स्कूलों में हुई, नगर निगम के जो हमारे दिल्ली में स्कूल थे, बहुत मैं कहूँगा कि सबसे हमारे जो खराब स्कूल हैं दिल्ली में, उनमें मेरी शिक्षा हुई और बहुत कठिन समय रहा। ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें नहीं जा पाऊँगा समय की कमी के कारण। लेकिन स्कूली शिक्षा के बाद मुझे ये स्कूली शिक्षा के दौरान मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि अगर मुझे इस बीमारी से पार पाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता शिक्षा है। और मेरे परिवार के इतिहास में शिक्षा कभी भी ज़रूरी नहीं मानी गई, क्योंकि हम लोगों का जो फैमिली प्रोफ़ेशन है, पारिवारिक पेशा है, वो कारपेंटरी रहा है। हम लोग लकड़ी का काम करते रहे हैं और लकड़ी का काम एक पीढ़ी अपने नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और मेरे चाचा जी को सिखाया, तो हमारी इस काम में शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरा काम शिक्षा के बिना नहीं चलेगा। ये एक यूँ कहिए कि थोड़ा मेरी कोशिश रही, थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी रही, अनुकूल कह लीजिए उनको, कि मैं शिक्षित हो पाया और थोड़ा यूँ कहिए कि अपने उस अंधेरे कोने से मैं बाहर निकल पाया, जिसमें पोलियो ने मुझे धकेल दिया था। और आज इतने वर्षों के बाद, मुझे 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था, आज मेरी उम्र 44 वर्ष है, तो 40 वर्ष का साथ है पोलियो और मेरा। और पोलियो के हर पक्ष को मैंने इन 40 वर्षों में, 4 दशकों के दौरान मैंने देखा है, जाना है, किस तरीके से पोलियो के जो शिकार होते हैं, वो उनकी मनोदशा कैसी रहती है, वो किस तरीके से हमारे समाज की उन संकरी गलियों के बीच में से होकर निकलते हैं, जहाँ उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में हार गए हैं, जहाँ उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि उन्हें जीना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं उनको दोष नहीं दूँगा, क्योंकि हमारा समाज अभी भी बहुत कुछ उसके अंदर चेंज होना बाकी है। जब तक वो चेंज नहीं आएगा, लोगों के मन से इस तरह के विचार जाएँगे भी नहीं। तो ये जो मन विटामिन की जो मैं बात करता हूँ, कि हमारे
मन की जो अच्छी भावनाएं होती हैं उन्हें मैं मन विटामिन कहता हूँ। जैसे होप है, आशा है, विश्वास है, साहस है। ये सारी भावनाएं हमें हमारे मन को पोषित करती है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी ये हमारे तन को, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पोषित करते हैं। उसी तरीके से आशा, विश्वास, साहस, प्रेरणा इस तरह की जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो हमारे मन को पोषित करती हैं। तो जैसे हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें एक स्वस्थ मन चाहिए, तभी हम एक संपूर्ण जीवन जी पाते हैं। केवल स्वस्थ शरीर से एक संपूर्ण जीवन नहीं मिलता है, ऐसा मैंने अनुभव किया और यही बात मैंने मन विटामिन के तौर पर अपनी पुस्तक में लिखी। वाह, क्या बात है। दूसरा एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि people like me are really blessed. God has been very kind to people like me. लेकिन फिर भी जब कभी कुछ बात मर्जी के खिलाफ हो जाती है या कुछ माइनर सा भी मिसाक हो जाता है, तो हमारे होठों पर शिकायत चली आती है कि why me? आपका जीवन तो इतनी तकलीफों से गुजरा है, क्या कभी आपके मन में ये बात आई, कभी आपने ये शिकायत की कि why me? मुझे लगता है हर कोई ये शिकायत करता है। तो अगर मैं केवल अपने आप को बहुत पॉजिटिव दिखाने के लिए कहूँ कि नहीं मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आया, तो ये गलत होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो संघर्ष करता है। उसको लगता है कि मुझे क्यों चुना गया? अब ये जो मुझे क्यों चुना गया, लोग अक्सर सोचते हैं व्हाई मी? मैं इसको सोचता हूँ कि मेरा चुनाव क्यों हुआ? जैसा विटामिन जिंदगी जी। के पहले चैप्टर में मैंने लिखा है कि मैंने बचपन से ये चित्र मेरे दिमाग में रहा है जिसको विटामिन जिंदगी का पहला चैप्टर मैंने बनाया है। वो कोई कल्पना नहीं है, प्रकृति माँ के बारे में मैंने लिखा है, वो कल्पना नहीं है। वो बचपन से मेरे मन में वो एक चित्र है कि प्रकृति ने मुझे चुना है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर किसी होमो सेपियंस को, अगर किसी मानव को ऐसी एक बीमारी दे दी जाए तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। प्रकृति माँ ये देखना चाहती है और आपको नहीं चुना, मुझे चुना है। तो मैं इस पर गर्व करता हूँ। मुझे इस बात से कोई कोफ्त नहीं है, इस बात से मुझे कोई नाराजगी नहीं है प्रकृति के साथ। मुझे इस पर गर्व है और मैं आज भी अगर कोई मुझसे कहता है कि क्या आप अपने जीवन को किसी और के साथ बदल लेना चाहेंगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, मैं अपने जीवन के साथ बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन रहा है, आज भी बहुत संघर्ष है, आने वाले दिनों में भी संघर्ष रहेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मुझे चुना गया है और मैं प्रकृति माँ को एक अच्छे टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर वो रीडिंग्स दे पा रहा हूँ कि ओके, अगर आप पोलियो वायरस से किसी मानव को इन्फेक्ट करती हैं तो इस तरह से जीवन जिया जाता है। क्या बात है, ये नजरिया सबने अपनाना चाहिए। यू आर रियली अ ग्रेट रोल मॉडल ललित जी, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं कुछ बनूंगा, ये जो जिद बचपन में आपने ठान ली थी वो तो खैर आपने पूरी कर दी। फिर आप संतुष्टता से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दिव्यांगों के लिए काम करना, ये तो बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जिस तकलीफों से गुजरे हैं उनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो आप ऐसे उन लोगों की भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जब मैं आपकी पुस्तक का अनुवाद कर रही थी तो ना जाने कितनी बार मैं रो पड़ी जब आपके बचपन की कहानियां मैं पढ़ रही थी। कहानियां मतलब वो वास्तव में पढ़ रही थी कि किस तरह आपको आपके स्कूल के सहपाठी, समाज या शिक्षकों ने भी कितने ताने दिए, कितना मजाक उड़ाया। समाज आपके प्रति बहुत ही असंवेदनशील रहा। फिर भी आपकी पूरी किताब में यही सुर गूंजता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, लेने के बजाय मुझे देना अधिक है। तो ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही कि जरा सी भी कड़वाहट नहीं समाज के बारे में, जिसने आपको इतना कष्ट दिया, फिर भी आप उस समाज के बारे में कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कड़वाहट रखकर कोई लाभ नहीं है।
अगर मैं किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखूंगा तो वो कड़वा जिस तरीके से मन की खुशी बांटने से बढ़ती है, उसी तरीके से नफरत और कड़वाहट ये भी बढ़ती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में किस तरह के भाव रखते हैं। वही भाव गुणित होते हैं, वही मल्टीप्लाई होते हैं और वही चीज जो है समाज में फैलती है। आज अगर मेरे मन में अच्छे भाव हैं, तो मैं अगर 100 लोगों के बीच में हूँ, तो जिस तरह की भाषा मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे ऊपर आते हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं दूसरे लोगों को प्रभावित करती हैं। अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव भावनाएँ रहेंगी, तो लोगों को वो उसी तरीके से प्रभावित भी करेंगी। और मुझे यकीन है कि इस वक़्त जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं मंजरी जी, वो इस बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि हमारे समाज में कड़वाहट और नफ़रत और नकारात्मकता की कोई कमी नहीं है जी कि जी बिल्कुल। हम क्यों उसके अंदर कुछ ऐड करें। तो मुझे तो ये लगा कि हाँ, समाज ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अगर आज मैं उस समाज को नहीं बदल पाया, तो मेरे पीछे आने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। तो क्यों ना इस धरती से जाने से पहले मैं एक कोशिश कर लूँ कि शायद थोड़ा-सा ही सही पर थोड़ा बदलाव आ जाए, ताकि मेरे पीछे जो लोग आएँगे, उन्हें हो सकता है कि एक बेहतर समाज मिले। मैं हो सकता है कि हम पोलियो को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दें, लेकिन कोई और दूसरी चीज़ आ जाएगी। कोई बीमारी नहीं आएगी, तो कोई सामाजिक बीमारी आ जाएगी। पोलियो एक शारीरिक बीमारी है, सामाजिक बीमारियाँ भी होती हैं, जो कि इंसान कलेक्टिवली इन्फेक्ट करती हैं। तो कुछ ना कुछ इंसानी जीवन में संघर्ष लगा रहता है और इंसान की एक प्रकृति है, दुर्भाग्य की बात है, पर ये एक प्रकृति है कि सामान्य से ज़रा-सा हट के अगर कोई होता है, तो हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता। हम्म, हमारे देश में आप लोग इस बात को शायद इससे एग्री करेंगे कि लड़कियों का रंग, इवन लड़कों का रंग अगर थोड़ा-सा सांवला हो जाता है, तो हमारे देश में शादियों में समस्या आने लगती है। तो जस्ट ये कि वो थोड़ा-सा डिफरेंट है अपने आस-पास के 100-50 लोगों से, तो जस्ट थोड़ा-सा रंग सांवला होने से एक किस्म की विकलांगता आ जाती है। एक किस्म की वो डिसेबिलिटी आ जाती है कि समाज उसको अपने लेवल पे नहीं मानता। कोई किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास शिक्षा कम है, किसी के पास सोशल स्टेटस नहीं है। हम किसी भी चीज़ को बेस बना लेते हैं अनइवननेस लाने के लिए, असमानता लाने के लिए। तो संघर्ष तो बना ही हुआ है और ये हमेशा चलता रहेगा, किसी ना किसी रूप में। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो लोग आएँ, उनको धक्का ना मिले, बल्कि थोड़ा-सा सहारा मिले कि अच्छा आप अलग हैं, तो चलिए मेरे पास ₹10 ज़्यादा है, मैं आपको दे देता हूँ ताकि हमारे बीच में थोड़ी समानता आ जाए। आप लोग रोटरी क्लब के जितने मेंबर्स होते हैं, सब लोग अपने धन का, अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके उसी समानता को लाने की कोशिश करते हैं। मैं भी अपने तरीके से उसी तरह की कोशिश करता हूँ। वाह! आपकी बात सुनते हुए मुझे एक बेहतरीन शेर याद आया कि माना कि ज़मीं को गुलज़ार न कर सकें, माना कि इस ज़मीं को गुलज़ार न कर सकें, कुछ ख़ार कम तो किए, निकले जिधर से। नेकलेस इधर, बिल्कुल, ख़ार का मतलब है काँटे, काँटे। अगर किसी को पता नहीं है। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू। और आपने कविता कोश का बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत उम्दा काम किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे मेंबर्स को कविता कोश के बारे में कुछ बताएँ और उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? क्योंकि वो जी, बहुत ही हट के, बहुत ही अलग-सा काम आपने किया है। जी। अ, आपने पूछा कि मुझे वो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है? मुझे लगता है कि ये एक मेरे मेरे जीवन में, या यूँ समझिए मेरे नेचर में जो सबसे पॉज़िटिव बात है, वो ये है कि मैं पॉज़िटिविटी के साथ संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। जितनी मिल जाती है उतनी कम रहती है। तो मेरा जीवन सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। मैं चीज़ों को स मैं जीता ही केवल चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने के लिए और नई चीज़ों को करने के लिए। कभी भी मन में ऐसा नहीं आया कि मैं कहीं सेटल हो जाऊँ।
जिसको हमारे समाज में कहा जाता है कि अच्छा शादी करके सेटल हो जाओ, नौकरी लेके सेटल हो जाओ, वगैरह वगैरह। मुझे हमेशा ये कहा गया कि आपको तो डिसेबिलिटी है, 90% आप डिसेबल्ड है, तो आपको तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपके लिए तो रिजर्वेशन है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वो करना ही नहीं। मैंने अपना आज तक मैंने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे ये मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पड़ा है। जबकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं थी, जरूरत बहुत थी। आज भी मैं किसी मॉन्यूमेंट पे अगर जाता हूँ, ताजमहल पे जाता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, अरे रे आप तो जाइए, आपके लिए तो फ्री है, फ्री है। मैं बोलता हूँ कि मुझे क्यों फ्री दे रहे हैं आप? अगर मेरी जेब में 50 रुपया या 500 रुपए की जो टिकट लगती है, उतना जेब में देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप मुझे अलाउ कर दीजिए। लेकिन अगर मैं पे कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों नहीं उस समाज के साथ बराबर खड़ा रहूं? और हो सकता है जो सुविधा मैंने कॉलेज में या किसी नौकरी के अंदर जो सीट मैंने रिजर्व अपने लिए नहीं ली, वो शायद किसी और को मिली होगी। तो अगर जो मैं चीजों को समेटना शुरू कर दूंगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। ललित कुमार जो कि 100 किलोमीटर जाने के लिए बना है, वो केवल 19 या 20 किलोमीटर जाके और ये तय कर ले कि अच्छा अब जीवन हो गया। नहीं, मैं क्यों? आप कभी अपनी कार के साथ ऐसा नहीं करते बाय द वे। आप जब कार खरीदते हैं तो उसको ऐसी कंडीशन में रखते हैं कि उसकी माइलेज मैक्सिमम आए। लेकिन अक्सर हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपने जीवन को उतना महत्व नहीं देते जितना हम अपनी कार को देते। तो हम अपने जीवन की माइलेज को खुद ही कम कर लेते हैं। हम अपनी क्षमताओं को खुद ही बांध लेते हैं। तो मुझसे ये नहीं होता है। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस में जब मैं काम करता था, मेरे पास परमानेंट जॉब की, यूनाइटेड नेशंस के सारी उसकी जो सुविधाएं थी वो सब थी। एक बहुत डीप सेटिस्फेक्शन था कि मैं एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे देखा जाता हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता हूँ। एक जब मैं अपने घर जाता था तो अपने दोस्तों के बीच में जाता था तो लोग पाकिस्तान के बारे में बहुत अलग तरीके से बात करते थे। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस में होता था तो पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह से होता था जैसे भारत है या नेपाल है या मालदीव है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल फोरम है। मैंने वहां से रिजाइन किया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। और उसी समय पर मैंने सोचा कि मेरे सामने एक जरूरत आई। मुझे कविताएं लिखने और कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा कि हिंदी की जो कविताएं हैं उनके लिए इंटरनेट पर कोई एनसाइक्लोपीडिया मौजूद नहीं है। अमेरिका वालों ने विकिपीडिया जैसा एनसाइक्लोपीडिया बनाकर रख दिया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि मुझे साहित्य का एक एनसाइक्लोपीडिया बनाना चाहिए और कविता कोश उसी प्रोजेक्ट का नाम था। और ये एक वॉलेंट्री प्रोजेक्ट है, टोटली वॉलेंट्री प्रोजेक्ट है। आज इसको रन करते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं और हमने भारत की और विदेशों की 50 से ज्यादा भाषाओं में, बोलियों में तकरीबन 1.5 लाख के लगभग रचनाएं संकलित की हैं। वाह, क्या बात है। उसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, गढ़वाली, हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, लिस्ट बहुत लंबी है। इन तमाम भाषाओं की लोकगीत, इन तमाम भाषाओं की साहित्यिक रचनाएं, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। और ये पूरी तरह से एक वॉलेंट्री प्रयास है मेरा और जो भी लोग आकर इससे जुड़ना चाहते हैं उनका। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि अगर आप मन से कुछ करना चाहें तो बिना रिसोर्सेज के भी आप कविता कोश जैसी एक राष्ट्रीय निधि तैयार कर सकते हैं। हमने उसके अंदर 0 पैसा लगाया है, सिर्फ अपना श्रम लगाया है, समय लगाया है। वाह, क्या बात है। मैं 1-2 बातें बताना चाहूंगी ललित जी के बारे में, जो वो जिक्र कर रहे हैं कि समाज से इक्वालिटी चाहते हैं। तो किस हद तक इक्वालिटी चाहते हैं? स्कूल में थे, जब एक दिन स्कूल जाने में उनको देर हो गई और कैसी तकलीफें उठा के वो चलते हुए स्कूल जाते थे, उसके लिए तो आपको उनकी किताबें पढ़नी होगी।
तो एक दिन देरी से स्कूल पहुंचे तो एक शिक्षक खड़े थे और देरी से आने वाले विद्यार्थियों के हाथों पर वो 2 छड़ियां मारते थे। जब ललित जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे तो भगवान ने पहले से ही सजा दे रखी है, मैं क्या सजा दूं, तू जा। लेकिन जब तक उन शिक्षक ने ललित जी के हाथों पर छड़ियां नहीं मारी, वो वहां से हटे नहीं। तो सजा में भी उनको डिस्काउंट नहीं चाहिए था। और नेशनल रोल मॉडल का जो उन्हें पुरस्कार मिला, काफी बड़ी धनराशि थी, उसमें से एक भी पाई उन्होंने अपने लिए नहीं रखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी ये शख्सियत है। उनका वो पूरा काम 40 मिनटों में समेटना तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप विदेशों में भी घूमे हैं, तो भारत में और विदेशों में दिव्यांगों के लिए होने वाली सुविधाएं और उनका दिव्यांगों की तरफ देखने का नजरिया, इनमें आपको क्या अंतर नजर आया? अंतर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक बेसिक अंतर तो ये समझिए कि मैं अपने घर से और अपने कॉलेज तक बस से जाया करता था। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलता था और उसके बाद 3 किलोमीटर का सफर मैं बस से तय करता था। तो बस में चढ़ने उतरने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि मेरे लिए हर रोज एक किस्म का यूं समझिए डेथ चैलेंज था। मैं किसी भी दिन बस के पहिए के नीचे आ सकता था। और जो मेरी ग्रेजुएशन के 3 साल थे, वो रोजाना वो एक डेथ चैलेंज होता रहा और बाय चांस मैं बच गया। मतलब किसी भी दिन मैं नहीं आया। एक दिन मेरी बैसाखियां जरूर बस के नीचे आ गई थी, मैं बच गया था। अ, तो मैंने जब मैं एडिनबरा पहुंचा एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करने के लिए, तो वहां सबसे पहले जो चीज मुझे लगी कि मैं वहां बसेस इतनी लो फ्लोर हुआ करती थी। अभी दिल्ली में लो फ्लोर बसेस आ गई हैं, लेकिन ये तब की बात, मैं 2006 में एडिनबरा गया था, तब तक दिल्ली में लो फ्लोर बसेस नहीं थी। तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बस ऐसी भी हो सकती है जिसमें जिसका फ्लोर इतना नीचा हो कि आप एक स्टेप रखें और उसके अंदर पहुंच गए। तो आपको शायद ये बहुत अजीब बात लगे, लेकिन मैं एडिनबरा पहुंचने के बाद कई दिन तक यूं ही बसेस में इधर से उधर घूमता रहा, आनंद लेने के लिए कि अच्छा देखिए मेरे लिए ट्रेवल कितना आसान हो गया है। तो एक तो ये चीज के एडिनबरा में रहते हुए मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं जहां जा रहा हूं वहां सीढ़ियां होंगी, नहीं होंगी, कैसा होगा। आप अगर भारत में मुझे कहीं जाना होता है, अभी हम ज़ूम के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर कोई एक एंग्ज़ायटी नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं अपने घर के कम्फर्ट में बैठकर आप सबसे रूबरू हो सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे आपके यहाँ आना होता, आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर कुछ ऐसे इंतज़ाम करते जिससे कि मुझे सहूलियत हो। लेकिन वो एक बिल्ट इन एंग्जायटी होती है हर उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ कामों को एक कहिए कि सामान्य तरीके से नहीं कर पाता है। तो एडिनबरा भारत में अगर मुझे किसी अननोन जगह पे जाना होता है, तो मैं गूगल सर्च करके उस जगह की जितनी इमेजेस संभव होती हैं वो मैं देख लेता हूँ। मेन डोर, किसी होटल जाना है तो मेन डोर देखूंगा, उसकी लॉबी कैसी है, हर चीज, किसी मॉन्यूमेंट पे जाना है तो वहां के देखो। एडिनबरा में मैंने कभी ये चीज नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत विश्वास हो गया था कि ये एक ऐसा शहर है जहां मैं कहीं भी जा सकता हूं और मुझे कोई रोक टोक नहीं। तो एक तो ये बहुत मेजर फर्क है हमारे देश में और बाहर के देशों में, कि एक्सेसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छी है वहां पर। उससे एक आत्मविश्वास मिलता है विकलांगजन को, एल्डरली को, प्रेग्नेंट वुमेन को, एनीबॉडी, सिक पीपल, दे कैन गो आउट। हमारे देश में कितने विकलांगजन हैं आपको नहीं कभी पता लगेगा, क्योंकि वो उनमें से ज्यादातर कभी घर से बाहर नहीं निकलते। आप कभी मॉल जाइए, मैं जब कभी भी एडिनबरा में घर से बाहर निकला तो ये गारंटी थी कि मैं कभी भी बिना किसी एक व्हीलचेयर यूजर को देखे बिना मैं कभी घर नहीं लौटा।
मतलब कोई ना कोई दिख ही जाता था, कहीं बस स्टॉप पर, किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में। यहाँ ऐसा नहीं होता है। आजकल धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं एक्सेसिबिलिटी के मामले में। और दूसरा जो पक्ष है वो है सामाजिक व्यवहार का। मैंने विटामिन जिंदगी के अंदर एक जगह लिखा है कि घूरना भारत घूरना। की राष्ट्रीय समस्या है। मैं भारत के बहुत सारे कोनों में गया हूँ, बहुत सारे राज्यों में गया हूँ, बहुत सारे शहरों में गया हूँ। एक चीज कॉमन है भारत के हर कोने में, लोग घूरते बहुत ज्यादा है। चाहे किसी को विकलांगता है, कोई बैसाखियों पर चल रहा है, कोई व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, किसी का रंग काला है, कोई पुरुष नहीं है, कोई लड़की है, तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन घूरते बहुत है। तो ये जो घूरना होता है, वो आप नहीं जानते कि जब आप किसी को घूरते हैं, तो सामने वाले के मन में आपने कौन-कौन सी भावनाएं जगा दी। वो भावनाएं आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो भावनाएं डिप्रेशन तक जा सकती कि यार मैं तो जब भी बाहर निकलता हूँ लोग मुझे घूरते रहते। तो वो व्यक्ति डिप्रेशन तक में जा सकता है, वो घर से बाहर निकलना बंद कर देगा। अभी जो इंट्रोडक्शन में दशमलव मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बात की गई। दशमलव मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं तकरीबन इस वक्त 1.25 लाख के लगभग विकलांगजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे अभी कल परसों की बात है, एक लड़की का फोन आया उत्तर प्रदेश के बहराइच जगह से, और वो लड़की पढ़ी लिखी है, टीचर है, और घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका स्कूल है, वो रोजाना पढ़ाने जाती हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप घर और स्कूल के अलावा और कहाँ जाती हैं? उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाती, मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो है। मैंने अरे कहा बाप रे! मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से डर लगता है। मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहती हूँ। उनकी नज़रें जिस तरीके से मुझे देखती है, जिस तरीके से उनकी टोन चेंज हो जाती है ये देखते ही कि सामने वाले को विकलांगता है, मुझसे वो टोन सहन नहीं होती। और सच कहूँ तो आज जो ललित कुमार आपके सामने बैठा है, वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, लेकिन अब से 20 साल पहले मुझे भी वो सहन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? उस समय मैं कुछ भी नहीं था। कौन जानता था? मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा कोई महत्व है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं किसी के सामने खड़ा हूँ तो बराबरी के तौर पे सामने खड़ा हूँ। मुझे हमेशा ये फ़ील कराया गया कि जैसे मैं नीचे हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ऊपर भी फ़ील कराया। ये एक बड़ी समस्या है, इसके बारे में भी मैंने किताब में ज़िक्र किया है लिखा है। कि हमारे देश में विकलांगजन के साथ जो लोगों का व्यवहार है, वो ऐसा होता है कि या तो ज़्यादातर लोग उनको नीचा महसूस कराते हैं, कुछ लोग उनको ऊँचा महसूस कराते हैं कि वो तो दिव्य हैं, जैसे कि दिव्यांग शब्द हमें मिल गया है, तो दिव्यता है उनके अंदर, बराबर कोई नहीं समझता कि ये लोग भी हमारे ही लेवल पर इंसान हैं, होमो सेपियंस हैं। ये कोई होमो जीनस की कोई अलग स्पीशीज़ नहीं। तो वो जो बराबरी की जो कमी है, वो भी मैं देखता हूँ कि भारत में और जो उन्नत देश हैं, उनके बीच में वो जो गैप है, काफ़ी ज़्यादा है। तो आपकी किताब पढ़ते वक़्त भी और अभी आपकी बातें सुनते हुए भी बार-बार मेरे मन में ये आता है कि मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ, तो उस समाज की ओर से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि ये जो समाज आपसे पेश आ रहा है, ये बहुत ही बुरी बात है। और पूछना चाहूँगी कि तब जैसी परिस्थिति थी, क्या थोड़ा तो बदलाव आया है अभी कि परिस्थिति वैसी ही है अभी भी? देखिए, मैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले मैं चंडीगढ़ गया था, एक पुस्तक से रिलेटेड एक कार्यक्रम में। तो उस कार्यक्रम में मैंने जब ये कहा कि बदलाव नहीं आया है, तो 2-3 दर्शक जो हैं वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं ललित जी आप तो गलत बोल रहे हैं, आप देखिए मैं फलाँ स्कूल चलाता हूँ, आप हमारे स्कूल में चलिए, पूरा स्कूल एक्सेसिबल है। तो ऐसी बातें लोगों ने कही। मैंने कहा कि ठीक है, गांधी जी ने कहा था और हम सब जानते हैं, आप भी इस बात को मानेंगे कि भारत चंडीगढ़ में नहीं रहता, भारत गाँवों में रहता है। आप चलिए मेरे साथ गाँव में और फिर बताइएगा कि बदलाव कहाँ आ रहा है।
तो हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़े शहरों के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत की करोड़ों की जनसंख्या जब 2021 में जनगणना होगी, तो मेरा खुद का एस्टिमेट है कि भारत में कम से कम विकलांगजन की जो जनसंख्या है वो 10 से 12 करोड़ के बीच में आएगी। बाप रे। 135-140 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग विकलांग हैं, यानी लगभग 10% लोग, 12% लोग विकलांग हैं, तो आप उसको छोटा तबका नहीं कह सकते। वो कोई 0.00001% नहीं है, वो बहुत बड़ा तबका है। तो ये तबका कहाँ है? वो चंडीगढ़ में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है, वो पुणे या मुंबई में नहीं है, वो गांवों में है, बहुत छोटे छोटे कस्बों में है। मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूं, और ये उदाहरण मैं हर मीटिंग में जहां कहीं मुझे मौका मिलता है बोलने का, ये उदाहरण मैं जरूर देता हूं, क्योंकि ये उदाहरण मेरे ख्याल से सब कुछ कह देता है। मेरे पास कुछ महीने पिछले साल की बात है ये, मेरे पास बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले से एक व्यक्ति ने एक आधार कार्ड की फोटो भेजी। आधार कार्ड की फोटो, फ्रंट साइड बैक साइड। वो आधार कार्ड जिस व्यक्ति का है, उसकी उम्र आज मतलब पिछले साल 36 या 37 साल थी। उस व्यक्ति को बचपन में ही पोलियो हो गया था। वो यूपी के एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला है, शिक्षित बिल्कुल नहीं है। आज भी 36 साल की उम्र में भी वो गांवों की गलियों में घिसट कर चलता है। उसके पास ना बैसाखी है, ना उसके पास लाठी है, ना उसके पास व्हील चेयर है, वो आज भी घिसटता है। बारिश हो जाती है तो आप जानते हैं कि जिन गांवों में कच्ची सड़कें हैं वहां कितनी कीचड़ हो जाती है, वो उसी कीचड़ में लथपथ होकर आगे बढ़ता है। जब उस गांव के अंदर आधार कार्ड बनाने वाले ऑफिशियल्स आए, तो लोग उस व्यक्ति को भी ले गए कि चलो जी आधार कार्ड बनता है। उस लड़के का, उस व्यक्ति का जब नंबर आया, तो जो लोग आधार कार्ड का डेटा फीड कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, उन्होंने पूछा हाँ जी नाम बताइए। तो वो व्यक्ति नहीं बोला, उसके पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति था उसने जवाब दिया जी इनको टेढ़ा कहते हैं। बचपन से उस व्यक्ति को, जिसकी उम्र 37 साल है, बचपन से उसे टेढ़ा कहा जा रहा है क्योंकि उसका शरीर टेढ़ा है। और अगर आप लोगों को बुरा लगा तो अभी बुरा मत फील कीजिए, बुरा अब फील कीजिएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि उस आधार कार्ड बनाने वाले ऑफिशियल ने टेढ़ा नाम से आधार कार्ड बना दिया। ये बाप रे। जो समाज विकलांगजन को एक नाम नहीं दे सकता, वो और उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे? मैं कैसे कह दूं कि दिल्ली में लो फ्लोर बसेस चलने लगी हैं तो भारत बदल गया है? नहीं, मैं उस व्यक्ति को जिसका नाम सबने टेढ़ा रखा हुआ है, उसका नाम, अरे यार उसी समय बोल देते इसका नाम रमेश, महेश, सुरेश, कुछ भी रख दो, सब उसको टेढ़ा कहते हैं। आज ऑफिशियली टेढ़ा नाम से एक व्यक्ति भारत के नागरिकता रजिस्टर में दर्ज है। सो बदलाव कितना आया है, दिल्ली में आकर देखिए, लो फ्लोर बसेस चल रही हैं, लेकिन कितना नहीं आया है वो टेढ़ा से जाकर पूछिए। मुझे तो अब बोला नहीं जा रहा। टेरिबल टेरिबल। तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारी बातें भी जाननी है, लेकिन अब हम थोड़ा समय की पाबंदी है तो हम आखिर की ओर चलते हैं। और ये इसको विराम देने से पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट से कहना चाहूंगी और अगले साल के प्रेसिडेंट से भी कहना चाहूंगी कि आज के इस भेंट वार्ता को हम भाग 1 कहेंगे और उत्तरार्ध के लिए हम ललित जी को फिर से बुलाएंगे और उनसे फिर बातचीत करेंगे। तो ललित जी, जैसा कि शुरू में आपने देखा है कि पोलियो इरेडिकेशन में रोटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पोलियो करेक्टिव सर्जरीज भी हमारे क्लब द्वारा बहुत सी स्पॉन्सर 100 से भी ऊपर स्पॉन्सर की गई हैं।
तो लेकिन इससे ये खुश होने की बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जब हम आपकी बातें सुन रहे हैं तो ये लगता है कि रोटरी जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जब भारत में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए समाज की मानसिकता को बदलने के लिए, तो ये एक बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से उठाने की जरूरत है। और सरकार क्या कुछ कर रही है दिव्यांगों के लिए, और क्या वो वहाँ उन तक वो सहायता या योजनाएं वो पहुंच रही है, उनसे कुछ लाभ हो रहा है उन लोगों को? देखिए, दशमलव के जरिए जितना बेस मेरे पास मौजूद है, उतना बेस इस वक्त भारत में किसी के पास नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, उससे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भारत में डिसेबिलिटी के बारे में और कोई नहीं दे सकता, ये गारंटी है। फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने काफी अच्छी योजनाएं विकलांगजन के लिए जारी की है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वो उनका जो पूरा असर है वो नहीं पहुंच पाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन करप्शन का है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पास एक लड़के का फोन आता है, उसकी उम्र है 23 साल, उसको बचपन से मोटा चश्मा लगा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि बहुत तेजी से नीचे गिरती है और जब उसका टेस्ट होता है तो पाया जाता है कि वो 80% ब्लाइंड हो चुका है। वो जाकर जिला अस्पताल में जाके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, ताकि उसे वो एक एग्जाम में अपीयर होना चाहता था, ताकि वो उस एग्जाम में अपीयर हो सके। जिला अस्पताल के जो चीफ डॉक्टर हैं, 2000 रुपए लिए बिना उन्होंने सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया, जबकि ये सर्टिफिकेट फ्री होता है। वो लड़के के जो पिता हैं वो एक छोटे से किसान हैं, उन्होंने उधार पैसा लेकर अपने बेटे का वो 2000 रुपया में सर्टिफिकेट बनाया है। तो जिन चीजों में कोई पैसा नहीं लगता, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके लिए अगर विकलांगजन को, बहुत गरीब विकलांगजन को अगर 5-5, 10-10 हजार रुपया देना पड़ रहा है, तो हमको फिर से ये सोचना पड़ेगा कि जो योजनाएं हम बनाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर हो, या वो एनजीओ द्वारा हो या रोटरी जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको करती हो, उसका वास्तविक प्रभाव क्या है। मैं यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुका हूँ 5 साल। मुझे मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, एनजीओ, सरकारें किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स बनाती है, किस तरीके से डेटा बनता है और उसका वास्तविक इफेक्ट क्या होता है, वो भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर हम थोड़े से इस बारे में संवेदनशील हो सके, इस बारे में अवेयर हो सके कि हम अगर 1 किलो अनाज कहीं भेजते हैं तो शायद उसका 100 ग्राम कहीं पहुंच रहा है। अगर हम इस बात को हाथ उठा के एक्सेप्ट कर लें, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन जब तक हम ये कहते रहेंगे कि नहीं जी, हमने तो 1 किलो भेजा था और 1 किलो पहुंच गया, तो वो उससे फिर क्या होगा कि कागजों में हमेशा ये लिखा जाएगा कि हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिखेगा। ये एक चीज है जो मेरे ख्याल से किए जाने की जरूरत है। रोटरी जैसी जो संस्थाएं हैं, मैंने कहा था कि मैं 2 मिनट लूंगा पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के बारे में बोलने के लिए। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा उसके बारे में। जो पोलियो के शिकार व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर पोलियो का असर जीवन में 2 बार होता है। पहली बार तब होता है जब वायरस उनके ऊपर अटैक करता है, जैसे मेरे साथ 4 वर्ष की उम्र में हुआ था। वो फेज होता है जब आपको पैरालिसिस होता है, जैसे मुझे हुआ था। लेकिन एक और फेज आता है जो कि इनिशियल अटैक के लगभग 15 से 25 साल, 30 साल, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इतने समय के बाद एक नया फेज शुरू होता है जिसको पोस्ट पोलियो कहा जाता है। पोस्ट पोलियो में क्या होता है कि पोलियो के इनिशियल अटैक ने जितनी वीकनेस आपको दी, वो वीकनेस और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। पोलियो के अटैक के बाद 10-15 साल, 20 साल हमको ये लगता है कि हम स्टेबलाइज हो गए हैं, मेरी इतनी वीकनेस है, इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन
जब पोस्ट पोलियो शुरू होता है तो आपकी वीकनेस लगातार बढ़ने लगती है और वो तब तक बढ़ती जाती है जब तक व्यक्ति इस संसार से विदा नहीं हो जाता। यानी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जानना? अमेरिका में पोलियो का जो सबसे बड़ा जो महामारी का रूप था वो 1950 के दशक में रहा। तो जिन लोगों को 1950 के दशक में अमेरिका में पोलियो हुआ, उनमें से बहुत सारे लोग अब इस संसार से जा चुके। लेकिन जो बचे हैं, वो अब ज्यादातर पोस्ट पोलियो का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनका वो फेज शुरू हो चुका है उम्र का। लेकिन भारत में पोलियो की महामारी 1980 के दशक में बहुत फैली, जैसे मुझे। तो आज लोग शुरुआत में है, पोस्ट पोलियो की शुरुआत में है। तो हमारी सोसाइटी को लाखों की संख्या में लोग इस वक्त पोस्ट पोलियो से जूझ रहे हैं। हमारी सोसाइटी को उसे भी एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी डिसेबलिंग प्रॉब्लम है। इसमें आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, इसमें आप किसी को कोई दवाई नहीं दे सकते। इट इज इनक्यूरेबल। बट टेढ़ा जैसे व्यक्ति को अगर हम पोलियो करेक्टिव सर्जरी या व्हील चेयर इत्यादि के जरिए मदद दे सके तो ये एक बहुत बड़ी सहायता होगी। लेकिन ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के लोगों को कैसे हेल्प की जा सकती है, उसके लिए कुछ? जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से हम इरेडिकेशन के लिए वैक्सीनेशन को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से पोस्ट पोलियो के लिए हमें असिस्टिव डिवाइसेस, अवेयरनेस और इसके अलावा जहां जरूरत हो पोलियो करेक्टिव सर्जरीज, इनको हमें स्पॉन्सर करना होगा ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। 100 पोलियो करेक्टिव सर्जरीज आपके यहाँ हुई है। मेरे खुद के ऊपर 6 बार सर्जरी हुई है। तो समझिए कि 6 सर्जरी से एक व्यक्ति कह सकते हैं कि कुछ हद तक उसको लाभ होता है। तो 100 सर्जरी से हम मान सकते हैं कि लगभग 20 व्यक्तियों को लाभ हुआ होगा, 30 व्यक्तियों को लाभ हुआ होगा। तो एक बहुत बड़ी संख्या है विकलांगजन की जो इंतजार कर रही है आप लोगों की मदद का। This is definitely to be considered. तो coming towards the end, मुझे ये विक्टर फ्रैंकल की जो मैन सर्च ऑफ मीनिंग किताब है, विक्टर फ्रैंकल खुद कंसंट्रेशन कैंप में बहुत साल रहे, तो इससे ज्यादा तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। तो वो कहते हैं कि मैन फाइंड्स मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू थ्री थिंग्स। वन इज वर्क, लव एंड सफरिंग। तो वर्क एंड लव से तो खैर मीनिंग पाई जा सकती है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो सफरिंग को भी एक अलग मोड़ दे देते हैं और उसमें उसको आप अपने जीवन का मीनिंग बना लेते हैं, पर्पस बना लेते हैं, तो आपकी तारीफ करने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। मैं बस हम सब मेंबर्स की ओर से आपको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। ओवर टू यू शरद। Manjiri and Lalit ji, I have no words to say that last 45 minutes we all heard you in rapt attention. And to be very frank, I have not come across any person with some disabilities being so positive. I personally feel that probably you are the best role model that one can think of for eradication of polio. Maybe Mr. Bachchan is doing a great job as a brand ambassador, but for us, you are the true brand ambassador of what you should do to overcome the challenges that life throws at you. Hats off to you, Lalit ji. Thank you very much. I think I'm expressing the feelings of all my fellow club members. Everybody is moved by the speech that you have given today. It's not a speech, but it's an experience that you have shared with us. And on behalf of majority of the members, I would like to promise you that you are good to have book Vitamin Zindagi probably will be in great demand in our Rotary district, definitely in our club. I assure you that it will motivate us further to do great work
Thank you very much. Now, I will unmute everybody. If anybody wants to say anything, please go ahead. Everybody can unmute, and if anybody wants to say anything to Lalit ji, please go ahead. Before we can ask Dr. Shobha Rao to propose vote of thanks, the stage is open for everybody. I think everyone is just speechless. Pradeep, would you like to say something? I have one experience in America. Yeah. I was attending a meeting, and one lady with on wheelchair came in, and the subject of discussion was that if I were to be born again, what do I want different? So everyone stood up. So the black, there was a Negro who said, if I'm born again, I want to be born a white because I don't like the treatment which I'm getting. Then somebody said, if I'm born again, I want to be, I want to get into college because I have not got college education this time. So when this girl's turn came, we all expected her to say that if I'm born again, I should be born with all my limbs hale and hearty. But she said, and I shuddered when she said this, if I'm born again, I want to be born disabled like I am now. Oh. I couldn't understand. None of us we stood still. And she said, because I will not get the same challenges which I have had in this life again if I'm born normal. I won't get the same lessons of life. We had no words to tell that woman anything. We had no words. I think that is the type of determination and challenge seeking which Lalit ji has shown to us. I think I just have to stand up and say, well done. Yes, it is true. I think, Pradeep, you have summarized the feelings of all our members today. Thank you. Now I will request Dr. Shobha Rao to propose vote of thanks. Over to you, Shobha. Friends, it is indeed a great honor for our club to have Mr. Lalit Kumar this evening with us. Contracting a disease like polio and facing the enormous challenges from as early as 4th year of age leaves any ordinary person shattered. You have not only overcome these challenges, but achieved huge success. That just reminds me the quote of our late President, Dr. Abdul Kalam, which states, if you want to shine like a sun, first burn. It is only befitting that a national award is conferred on you for being a role model. Your efforts for digitizing Indian literature are amazing. I have no words for appreciation of your activities to help persons with disabilities. I thank you wholeheartedly on behalf of my club for sparing your valuable time. I also thank Manjari for conducting the interview beautifully. Finally, thanks are also due to Shirish for arranging this program on the backdrop of World Polio Day in this month. Last but not the least, thanks to all the members for attending the program in large numbers. Thank you, and I promise we will definitely invite you next year too. Thank you. Over to Sharad. Thank you, Shobhate. Next week's program on 12th October, we will have Mrs. Meena Ganesh. She is the CEO of Portia Medical, India's largest and fastest growing healthcare company. She will be talking to us on caring for health of seniors. So let's attend in large numbers the next week's program. One more thing which I would like to share with everybody. I think we have already got it on our official group. Today is the birthday of our past district governor, Mr. Vinay Kulkarni. And what a way to celebrate birthday.
He has contributed $80,000 to these type of initiatives. Hats off to him. On behalf of Rotary Club of Pune Shivaji Nagar, I think we should congratulate PDG Vinay. Today's attendance. $80,000 दिले विनय कुलकर्णी विनय कुलकर्णी पीडीजी आज त्याचा बर्थडे तर कधी आज कशाला दिले फाउंडेशन Today's attendance. सांगताय Yeah, 44 Rotarians, 34 ants, 4 guests. This meeting is at. Thank you once again, Lalit ji. Awesome कार्यक्रम.